Hello friends, welcome back to my channel Adorable Life and Living. So today we are going to discuss very important topic. हर एक गर्ल का क्वेश्चन, which hair treatment will be good for my hair? So this time I'm going to answer this. So believe me, मैंने जो भी hair treatments कराए हैं मैं आज उनको review करने वाली हूँ and I'll give you the best option. So today we'll discuss 5 hair treatments: Botox, keratin, rebonding, smoothing, and last nanoplastia. So let's get started. Let's start with keratin treatment. So keratin treatment is one of the most popular treatment present in salon industry. Keratin is already present in our hair, so to this treatment rebuilds that keratin and makes your hair shiny and hydrated. So who should go for this? So it is for the people who like to have semi-permanent smooth straight hair, people having curly or wavy hair. अगर हम इसकी लास्टिंग के बारे में बात करें सो इट लास्ट अप टू 4 मंथ. बेनिफिट्स के बारे में बात करें सो दिस ट्रीटमेंट रीबिल्ड्स योर hair keratin, which makes your hair shiny, straight, and it adds little bit of volume to your hair. Okay, अगर हम इसके कॉन्स के बारे में बात करें सो द कॉन्स आर इट्स एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग एंड यू विल एक्सपीरियंस बैड हेयर फॉल इफ़ यू आर यूजिंग हार्ड वाटर. आपको स्पा लेना पड़ेगा मंथली टू मेंटेन दैट. And the worst thing is the product contain formaldehydes. Formaldehydes may cause serious illness. It hydrates and gives moisture to hair follicles so hair look healthy and shiny. In some instance it stops aging too. Now अगर हम इसकी lasting के बारे में बात करें so it's last up to 6 months. Now let's talk about its pros and cons. So the benefits of Botox is it gives moisture to your skin, your hair look frizz-free, it gives 80% straight hair, hair look nourished and hair will be easy to manage. अगर हम इसके cons की बात करें so the cons are it's time consuming and it's very expensive. So these are the cons, but yes, Botox lasts longer. Okay, so this is about Botox treatment. Okay, so now let's talk about rebonding. Rebonding is purely chemical treatment which uses lots of chemicals. It gives that pin type straight hair look. Yes, but of course after rebonding आपके हेयर बहुत मैनेजेबल हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं, लस्ट्रस दिखते हैं. अब क्वेश्चन है किसको ऑप्ट करना चाहिए रीबॉन्डिंग, कौन ऑप्ट करता है रीबॉन्डिंग. सो द पीपल हैविंग फ्रीजी हेयर, बहुत टैंगल होते हैं हेयर, कर्ली हेयर्स कैन गो फॉर रीबॉन्डिंग. रीबॉन्डिंग की लास्टिंग के बारे में बात करें सो इस लास्ट अप टू 10 to 12 मंथ्स. सबसे ज़्यादा लास्टिंग होता है रीबॉन्डिंग का और यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट भी है. रीबॉन्डिंग के बेनिफिट्स में लास्टिंग जो सबसे बड़ा है, 10 to 12 मंथ ये लास्ट करता है, मैनेजेबल होते हैं आपके हेयर, टैंगल फ्री होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, यू आर रेडी टू गो एनी वेयर एनी टाइम. बट येस अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें सो आपके हेयर जो न्यू हेयर ग्रोथ होता है वो बहुत ही ब्रिटल हो जाता है, हेयर डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, हेयर वीक हो जाते हैं, हेयर फॉल वर्स्ट होता है रीबॉन्डिंग के केस में. सो प्लीज़ मेरा सजेशन होगा अवॉइड रीबॉन्डिंग. यू कैन गो फॉर अदर ट्रीटमेंट्स बट प्लीज़ अवॉइड रीबॉन्डिंग. The treatment which is much better than rebonding is smoothing. So we'll talk about smoothing now. Smoothing often compared to rebonding. अभी जैसे हमने rebonding डिस्कस किया, it uses lots of chemical, but in smoothing हाँ rebonding के comparison में कम chemicals use होते हैं in smoothing. Smoothing give natural straight hair. You will not experience that pin type straight जो हमें rebonding में दिखते हैं. Smoothing can last up to 3 months और 4 months. It depends कि आप कितना frequently hair spa लेते हैं, आप shampoos कौन से use करते हैं. But yes, of course, smoothing is better than rebonding, I'll suggest.
अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, सो स्मूथनिंग गिव्स नाइस नेचुरल लुक टू योर हेयर, हेयर बिकम्स टेंगल फ्री, जो फ्रिज होती है हेयर की वो रिमूव हो जाती है, स्मूथ फिनिश मिलता है। अगर हम इसके कॉन्स की बात करें, सो यू विल एक्सपीरियंस बैड हेयर फॉल आफ्टर स्मूथनिंग, हेयर डैमेज बहुत होते हैं, वीक हो जाते हैं स्मूथनिंग के बाद केमिकल्स के यूज़ होने से, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट tangle and all. So I will say it's a temporary treatment. Now let's talk about the last hair treatment, nanoplastia. Nanoplastia is a natural alternative to keratin and other hair treatment. It doesn't use formaldehyde or any other harmful chemical. Even it uses collagen and amino acid to give your hair elasticity and hydration, which is much needed. अगर हम नैनोप्लास्टिया के बेनिफिट्स के बारे में बात करें, सो येस, इट्स कम्प्लीटली ऑर्गेनिक. इट गिव्स योर हेयर नेचुरल शाइन, इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेट फिनिश. नाउ हु शुड गो फॉर दिस? डेफिनेटली एनीवन can go for this because it is natural, chemical free, it gives nice texture to your hair. अगर हम इसकी लास्टिंग के बारे में बात करें तो इट लास्ट अप टू 10 months. बेनिफिट्स के बारे में बात करें, सो इट लास्ट अप टू 10 months विदाउट एनी स्पा, हेयर स्पा और एनीथिंग. ओके, आपको कोई भी एक्स्ट्रा केयर लेने की ज़रूरत नहीं है. ये प्रोटीन 10 months आराम से लास्ट करता है, आपके हेयर को नेचुरल शाइन देता है, वॉल्यूम ऐड करता है, एक ग्लॉसी फिनिश देता है, आपके हेयर हेल्दी दिखते हैं. अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मुझे एक्सपेंसिव होने के अलावा जो एक बहुत ही छोटा सा डिसएडवांटेज अभी तक देखने आया है वो है कि जो बहुत रियली शॉर्ट हेयर होते हैं उस पर ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता. बट if you have shoulder length or below that, you can definitely go for nanoplastia. So nanoplastia is the natural treatment for hair. You can definitely go for that. ओके, सो हमने बात किया डिफरेंट हेयर ट्रीटमेंट के बारे में. अब आप मेरे हेयर देख सकते हैं और मैं अब आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सा हेयर ट्रीटमेंट यूज़ किया. अभी रिसेंटली मेरा कौन सा हेयर ट्रीटमेंट है जो मैं फ्लॉन्ट कर रही हूँ. सो मैंने आपके साथ जितना भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. मैंने ये सारे हेयर ट्रीटमेंट कराए हुए हैं और बहुत रिसर्च के बाद जो मुझे बेस्ट हेयर ट्रीटमेंट लगा है दैट इज़ नैनोप्लास्टिया. आप देख सकते हैं मुझे नैनोप्लास्टिया कराए हुए अराउंड 6+ months हो चुके हैं, बट वो ग्लॉस, वो फिनिश अभी तक मैं फील कर सकती हूँ. हेयर में जो स्मूथ हेयर है वो अभी तक मैं फील कर सकती हूँ. बहुत ही मैनेजेबल हो गए हैं, टैंगल फ्री रहते हैं, फ्रिज फ्री रहते हैं, कहीं भी जाने के लिए, रेडी होने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगता है. सो मेरा एक्सपीरियंस है, व्हाट आई सजेस्ट इज़ नैनोप्लास्टिया. अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करें तो हर एक ट्रीटमेंट का कॉस्ट डिपेंड करता है आपकी सिटी पर, आपके हेयर लेंथ पर, अप टू शोल्डर, वेस्ट, बिलो वेस्ट कितना लेंथ है और आप कितना अच्छे डील्स क्रैक करते हैं. बट समवेयर इट्स इन बिटवीन 2000 to 12,000 इन बिटवीन. सबसे ज़्यादा कॉस्टली इस समय नैनोप्लास्टिया है बिकॉज ये लेटेस्ट है, नेचुरली इट्स ऑर्गेनिक और इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं हो रहे हैं. तो नैनोप्लास्टिया इज़ ऑन द कॉस्टलियर साइड, बट येस, it worth. So this is all about this video. I hope आपको मज़ा आया होगा. आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे. मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आया होगा डिसीजन लेने में कि विच हेयर ट्रीटमेंट इज़ बेस्ट फॉर यू. सो इसी तरह और क्वेश्चंस के लिए, अपनी लाइफ को एडोरेबल बनाने के लिए कीप फॉलोइंग मी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. लिव एडोरेबल लाइफ. बाय बाय.